بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، یعنی جو بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ بات کرنے کا، اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی انسان کے اندر شیطان ہے جو برائی کو ڈالتا ہے، اور انسان کے اندر وہ شیطان ہی ہے جو انسان کو اندر جھگڑا ڈالتا ہے، انسان کی بھلائی کو برائی میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسان کے لیے بیان کر دیا کہ شیطان ہی ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے، جو تمہیں بری بری چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اور تمہیں بری باتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور آپس کے معاملات میں محبت، نرمی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپس کے معاملات میں محبت اور نرمی کو اپناؤ، اور محبت اور نرمی کو اختیار کرو۔ رب کائنات نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، کہ رب کائنات ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے، وہ کون ہدایت سے نکل جانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا رحم کرے، اور جس کو چاہے اپنے عذاب جس پر چاہے اپنا عذاب ڈال دے، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کافر اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران نہیں ہے کہ آپ پر کوئی باز پرس کی جائے، کہ آپ سے کچھ سوال کیا جائے، کہ آپ سے کچھ پوچھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف پیغام رسا، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی فرمانبرداری اور نافرمانی کو خوب جانتا ہے۔ وہ ہر چیز کے حالات سے واقف ہے، یعنی وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے، ان میں سے جو کوئی کسی چیز کا مستحق ہے، اور اس کی حکمت جس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی حکمت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے وہی عطا کرتا ہے، اور وہ تمام کے تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر فرمایا وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا۔ ان نبیوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ یہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں افضل ترین، سب سے افضل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ یہ کہ مجھے وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ دوسرا، دشمن پر رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ تیسرا، میرے لیے غنیمت کے اموال حلال کیے گئے، اس سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھے۔ چوتھا، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد پڑھنے کی جگہ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی۔ نمبر 5، میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6، اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔
वातईन दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। ज़बूर अल्लाह ताला की किताब है, किसी को किताब फजीलत की बिना पर अता की जाती है, इसलिए यहाँ ज़बूर का तज़किरा किया गया। कि सईदा अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर पढ़ना इतना आसान कर दिया गया था कि वो अपनी सवारी के जानवरों पर ज़ीन कसने को, वो जो ऊपर उनके वो कसा जाता है जिस पर सवारी की जाती है, कसने का हुक्म देते, और जीन कसे जाने से पहले ही पढ़ चुके थे, यानी उसको पहले ही पढ़ चुके होते, और अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत दी थी, उसके बावजूद भी वो अपने हाथ से जरहें बनाकर वो उससे अपनी उस कमाई से खाया पिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया, कुल इदउ लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ दुर्रि अन्कुम वला तहवीला। आप कह दें जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा कुछ समझते हो, उन्हें पुकार देखो, चनाचे ना वो तुमसे तकलीफ दूर करने का इख्तियार रखते हैं, और ना ही और ना ही उसको बदलने का इख्तियार रखते हैं। वो तुमसे इस तकलीफ को दूर नहीं करेंगे, और ना ही ये बातिल किसी सख्ती को किसी एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं। अगर तुमने कोई माबूद बना रखे हैं तो उन माबूदों को बुला कर पुकार कर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया, उलाइकल लदीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहू व यखाफून अज़ाबह। यही लोग जिन्हें वो पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला यानी कुर्बत का जरिया तलाश करते हैं कि कौन उनमें से ज्यादा करीब है। व यरजून रहमतहू व यखाफून अज़ाबह, और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और वो उसके अजाब से डरते हैं। इन अज़ाब रब्बिका कान महजूरा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन आपके रब का अजाब वो है जिससे हमेशा ही डरा जाता है। अल्लाह ताला का अजाब बहुत ही सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब वो है जिससे हमेशा ही खौफ खाना चाहिए, और ऐसा अजाब है कि इंसान को उससे बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, व इम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। और कोई बस्ती ऐसी नहीं मगर हम क़यामत के दिन से पहले इसे उसे हलाक करने वाले हैं या उसे सख्त अजाब देने वाले हैं। कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। बहुत सख्त अजाब ये हमेशा से किताब अल्लाह में लिखा हुआ है। यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि यहाँ पर खास तौर पर कि कोई बस्ती ऐसी नहीं मगर ये हम क़यामत के दिन से पहले उसे हलाक करने वाले हैं या उसे अजाब देने वाले हैं। बहुत सख्त अजाब, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूलों को झुटलाने वाली कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे क़यामत के दिन से पहले हलाकत या अजाब का सामना ना करना पड़ा हो। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बस्तियों को निस्सो नाबूद कर देते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तलाक़ में फरमाते हैं, तो उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और उनके काम का अंजाम खसारा ही हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। अल्लाह ताला फरमाती है, और हमें नहीं रोका कि हम मौजज़ात भेजें मगर ये कि उनसे पहले लोगों ने भी उनको झुटला दिया था। वातईना समूद अन्नाक़त मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा, और हमने समूद को ऊँटनी का वाज़े मूजज़ा दिया, चनाचे उन्होंने इस पर भी जुल्म किया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफ़ा, और हम खौफ दिलाने के लिए ही मोज़ात भेजते हैं। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा, और हम खौफ दिलाने के लिए ही मोज़ात भेजते हैं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का ने मुतालबा किया था कि सफ़ा को सोने का बना दिया जाए या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएं ताकि वहां काश्तकारी मुमकिन हो सके। इस पर अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ये पैगाम भेजा कि हम मुतालबात पूरे पूरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसके बाद ईमान ना लाए तो हलाकत यकीनी है, फिर इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया कि उनके मुतालबे को पूरा ना किया जाए, ताकि वह यकीनी हलाकत से बच जाएं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही इरशाद फरमाया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया कि उसकी रहमत है कि उसने उनके मुतालबात पर मुअज़्ज़ात नाजिल नहीं फरमाए, क्योंकि अगर वो इसके बाद ईमान नहीं लाएंगे तो उन पर फौरन अजाब नाजिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इसी बारे में सूरह अल अंबिया में इरशाद फरमाते हैं, उनसे पहले कोई बस्ती ईमान नहीं लाई जिसे हमने हलाक किया, तो क्या वो ईमान लाएंगे? यानी हलाक की हुई किसी बस्ती ने भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे। और हमने समूद को ऊँटनी का वाज़ेह मौजज़ा दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने, तो उन लोगों ने उस ऊँटनी पर भी जुल्म किया। अल्लाह ताला ने समूद की तरफ जो मोजा भेजा वो एक मुय्यन चट्टान से अजीम ऊंटनी का पैदा होना है। इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर था, जिस दिन वो पानी पीती थी, वो उस दिन किसी और को पानी नहीं मिलता था। समूदियों ने उस पर जुल्म किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी की और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अजाब में मुब्तला किया और उन सब को नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ुल्ना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, और जब हमने आपसे कहा कि आपके रब ने बिलाशुबा लोगों को घेर रखा है। वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरआन, और हमने कोई ख्वाब जो आपको दिखाया उसे नहीं बनाया मगर लोगों के लिए आजमाइश, और कुरान में लानत ज़दा दरख्त भी। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो इरशाद फरमाया, और जब हमने आपसे कहा कि आपके रब ने बिलाशुबा लोगों को घेर रखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग की तरगीब दी गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी की बिशारत है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इससे मुराद यहाँ पर लोगों को घेरने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज कर दिया गया है। इससे मुराद अहले मक्का है कि वो अल्लाह ताला के काबू में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखौफ होकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इससे मुराद आइंदा बदर के मैदान में हासिल होने वाली फतह भी हो सकती है, और फतह मक्का भी, कि अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को घेर रखा है और सब काबू में आने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-अनफाल में इरशाद फरमाया, और जब वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आपके खिलाफ खुफिया तदबीरें कर रहे थे कि वो आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या जलावतन कर दें, और वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह ताला भी खुफिया तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ताला खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर तदबीर करने वाला है। वाक़या मिराज और शजर ज़क़ूम आजमाइश हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि और हमने कोई ख्वाब जो आपको दिखाया उसे नहीं बनाया मगर लोगों के लिए आजमाइश, इससे मुराद अक्सर मुफसरीन के नज़दीक शब मिराज है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में जो मंजर दिखाया गया था वो लोगों के लिए आजमाइश थी। सईदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये रुया यानी ख्वाब आंखों देखा वाक़या था जो रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। यानी ये ख्वाब न था बल्कि खुली आंखों के साथ उन्होंने तमाम चीजों को अपनी आंखों से देखा। इसमें आजमाइश थी उन लोगों के लिए। यानी जिस रात मिराज का वाकया पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, हंसी हंसी मजाक करने लगे कि ये किस किस्म की बातें कह रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात बैतुल मुकद्दस की और फिर आसमानों की सैर करके आए। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वशजरतल मलऊनत फिल कुरान, और कुरान में लानत ज़दा दरख्त में, यानी कुरान मजीद में जिस दरख्त की बुराई की गई है वो जक़ूम है। रब्बुल इज़्ज़त ने जक़ूम फरमाया जक़ूम के बारे में कि यकीनन जक़ूम का दरख्त गुनहगार का खाना है। जिस दरख्त की बुराई कुरान में से आई है वो जक़ूम का दरख्त है। जब आपने लोगों को खबर दी कि मैंने जन्नत और जहन्नुम दोनों को देखा और दरख्त ज़क़ूम को भी देखा, तो लोगों ने आपको झुठलाया। बल्कि अबू जहल नामुराद ने तो यहाँ तक कहा कि खजूर और मक्खन ले आओ। फिर वो खजूरें मक्खन से खाने लगा और कहने लगा आओ दोनों को मिलाकर खाओ, हम तो इसके सिवा और कोई दूसरा ज़क़ूम जानते नहीं। दर हकीकत तज़कुम जो है, तज़कुम के मानी खजूर को मक्खन से मिलाकर खाने के हैं। ज़क़ूम यानी खजूर और मक्खन मिले जुले।
اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تزکم جو ہم کھاتے ہیں، آلریڈی کھاتے ہیں، یہ اسی کی بات کر رہے ہیں، تو آج میں ان کو کھا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل اور اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈرانا بھی ان کو سرکشی میں ہی لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات بھیجے، ان معجزات کو دیکھ کر یہ ہدایت نہیں پاتے، بلکہ ان معجزات کو دیکھ کر یہ در حقیقت مزید گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے جس آزمائش میں ہم پورا نہ اتر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔